The negative sign is indicative of fact that the voltage developed across inductor opposes the increase of current. अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो वो उसको अपोज कर रहा है. From Kirchhoff law, the voltage across the inductor should be equal to the voltage across capacitor. KVL लगाते हैं ना, Kirchhoff voltage law, the voltage should be equal across the parallel component. तो दोनों को हमने इक्वल लिख दिया. यहाँ से हमारे को कंडीशन मिल गई d2q by dt2 is equals to minus omega square q, where omega is 1 upon root LC. यहाँ से टाइम हम निकाल सकते हैं. ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी. तो टी आ गया. टी कितना आ गया? 2 पाई एल रूट एल सी. यही आ गया ना. ओमेगा की जगह 1 अपॉन रूट एल सी इज इक्वल्स टू 2 पाई टी. टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल सी. ये आ गया टाइम पीरियड. At any instant, the charge is given by the sine or cosine function. If q is charge taken, then q is equals to q naught uh, cos omega t plus delta, and I is dq by dt. This is how charge and current is changing with time. Energy consideration. The differential equation for LC oscillator can also be obtained by considering the energy in the system. At any instant, the electrostatic energy stored in capacitor is given by U is equals to Q square by 2C, and the corresponding magnetic energy stored in inductor. Magnetic energy UM is given by L square by Li square by 2. Total energy is the sum of both magnetic energy and the electrostatic energy, which is given by this formula. E is equals to half Li square plus Q square by 2C. I को हमने dq by dt लिख दिया, तो अभी Q में क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. Initially, when the capacitor is fully charged and connected with inductor, the capacitor starts discharging through inductor. The charge stored in it will reduce gradually and current starts flowing in the inductor. Due to growth of current in inductor, an EMF will be induced. In due time, the current will reach a maximum value. After attaining the maximum value, the current through inductor start decreasing, and in due course the energy becomes zero. At that instant, charge on capacitor again reaches the maximum value. This cycle repeated and energy of circuit fluctuates alternatively between the इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी. आपका ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है. जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, और जब हमने की को बंद कर दिया तो एनर्जी यहाँ से फ्लो हो गया, करंट का फ्लो होने लगा. तो इसके अबाउट ई इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. इसके अबाउट एन करंट बढ़ने लगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल बढ़ने लगा. पोटेंशियल बढ़ने के बाद कुछ टाइम बाद यू मैक्स हो गया. यहाँ पे यू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई. ऐसे ही दोबारा से जब ये फुली चार्ज हो जाएगा इंडक्टर, तो कैपेसिटर अनचार्ज हो जाएगा, फिर दोबारा से ये इसको चार्ज करने लगेगा. यही सिस्टम चलता रहेगा, और इसी को हम कहेंगे एसएचएम कर रहा है. ये एनर्जी इधर से उधर ट्रांसफर हो रही है, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है. Thus, the total energy of the circuit remains constant. Therefore, dE by dt is equals to zero. इसको डिफरेंशिएट किया, क्या था हमारा? क्यू स्क्वायर बाय 2C प्लस एल हाफ एल आई एल नॉट आई स्क्वायर एल dq by dt. क्यू डॉट स्क्वायर बाय 2. इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो. 2 क्यू डॉट बाय 2C प्लस एल 2 क्यू डबल डॉट बाय 2. 2 से 2 कट गया, इज इक्वल्स टू जीरो. यहाँ से क्यू डॉट कॉमन ले लेंगे. क्यू बाय सी प्लस एल क्यू डबल डॉट इक्वल टू जीरो. सिंस क्यू डॉट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, चेंज इन करंट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि करंट जब चेंज हो रहा है उसी की वजह से
हमारा एनर्जी में चेंज आ रहा है, एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से, तो ये तो नहीं चेंज होगा। दूसरा क्या है, एल क्यू डबल डॉट प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो, क्यू डबल डॉट इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एल सी। वन बाय एल सी को हमने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ओमेगा इज इक्वल्स टू वन बाय रूट एल सी। So we can see that the form of energy consideration too. We arrive the same result as before. Okay. अब इसका एक क्वेश्चन है, in oscillating LC circuit, evaluate the value of charge Q in terms of maximum charge Q present on capacitor when energy is shared equally between the electric and magnetic field. ये वैल्यू दे रखी है L और C की। If at time t equal to 0, calculate time when this condition will occur. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मैक्सिमम सर चार्ज क्यू प्रेजेंट ऑन। हाँ, सर इसमें क्या क्या याद करने का एक बार बता देंगे एलसी सर्किट में। इसमें ओमेगा की वैल्यू और टी की वैल्यू और कंडीशन ये वाली, बस यही दो चीजें याद करने की चाहिए। और इसमें ये एनर्जी एक्सप्रेशन तो आपने ईएमटी में पढ़ा हुआ, तो वो तो याद होगा ही। यस सर। बाकी तो आपको है नहीं ये करंट सर आवाज क्लियर सर नहीं। आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है। कैसे ग्रो कर रहा है, ये करंट और टाइम कैसे ग्रो कर रहा है। सर आवाज़ नहीं क्वेश्चन आ में रही क्या कहा थी गया है अच्छे कि से। एनर्जी को इक्वली शेयर किया गया है। आवाज सुबह ठीक से आ रही अभी थी। आ रही है सर, अभी आ रही है, उस टाइम नहीं आ रही थी। ये भी लैग कर रहा है मुझे लग रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ। अभी कुछ लिखा यस हुआ सर। नहीं दिख रहा है। सर कुछ लिख रहे हैं क्या अभी? चलो इसे देखते हैं क्वेश्चन। नहीं अभी लिखूंगा, अभी लिखा नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपका जो चार्ज है, एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हाफ जो है, हाफ मैग्नेटिक है, यू मैग्नेटिक प्लस हाफ यू इलेक्ट्रिक है। ओके, तो हमने कैपेसिटर पे माना कितनी एनर्जी होती है, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, और वो टोटल एनर्जी का कितना है, हाफ है। क्यू फुल्ली चार्ज कैपेसिटर पे कितनी होती है, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, क्योंकि इन्हें टोटल चार्ज दिया है मैक्सिमम चार्ज क्यू बाय टू सी, और इसका हाफ हो गया, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू बाय रूट टू इजिकल्स टू 0.707 क्यू। सिमिलरली एट टी इक्वल टू जीरो, सर क्वेश्चन फ्रॉम क्या बोल इक्वेशन, रहे हैं एक बार बोल बताइए ना। आपके पास एक एलसी सर्किट है, उसमें आपको निकालना है स्मॉल क्यू की चार्ज। स्मॉल क्यू मतलब वो चार्ज जो एक दूसरे में ऑसिलेट होगा, मतलब जो डायनेमिक चार्ज होगा ना, जो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, वो चार्ज निकालना है। मैक्सिमम चार्ज जो मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंट ऑन ए कैपेसिटर, कैपेसिटर पे प्रेजेंट है व्हेन द एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो हमारी एनर्जी है वो इक्वली शेयर्ड है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, दोनों में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, हाफ इलेक्ट्रिक की होगी हाफ मैग्नेटिक की होगी, ठीक है ना। यस सर। तो वही बताया है कि दोनों में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैक्सिमम की हाफ कितनी हो गई, ये हो गई, ये यू मैक्सिमम डिवाइडेड बाय टू हो गई, क्योंकि हाफ शेयर्ड है, हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है हाफ मैग्नेटिक फील्ड के पास है, और ये जो डायनेमिक एनर्जी ट्रांसफर है, डायनेमिक मीन्स जो कम बढ़ होगा चार्ज उसकी वजह से जो एनर्जी होगी, ठीक है, तो ये निकालना है। सेकंड में चार्ज कैसे चेंज हो रहा है, चार्ज की इक्वेशन क्या थी, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। क्यू नॉट कितना दे रखा है, क्यू, और हमें चार्ज कितना बताना है, चार्ज कितना पहुंचाना है, टी इक्वल टू जीरो,
कैलकुलेट द टाइम व्हेन दिस कंडीशन अराइव। व्हेन दिस कंडीशन अराइव्स मींस हमारा जो स्मॉल चार्ज है वो कैपिटल चार्ज के बराबर हो जाए। कॉस ओमेगा टी, टी इक्वल टू जीरो है तो ये तो जीरो है ये वाली टर्म। डेल्टा कितना आ गया यहाँ से, जीरो। देयरफॉर क्यू इक्वल टू क्यू बाय रूट टू कॉस ओमेगा टी। यहाँ से कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 5/4 रेडियंस। टी इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 ओमेगा 5/4 रूट एल सी। एल और सी की वैल्यू आपको गिवन है, आप यहाँ से रख के आंसर निकाल सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद समरी है आप, और बाकी तो इसकी टर्मिनल क्वेश्चन वगैरह आप लोग ट्राई करना। इजी है, क्वेश्चन हो जाएंगे और इनके सॉल्यूशन गिवन है सबके। ठीक है, नेक्स्ट है सुपरपोजिशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसमें हमें क्या पढ़ना है, 4.4 सुपरपोजिशन ऑफ टू कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। कोलिनियर मीन एक ही डायरेक्शन में है, मीन्स वन डिमेंशन, ऐसे हो रहे हैं या ऐसे होगा, मतलब सेम फेज आउट ऑफ फेज, लेकिन वो होगा वन डायमेंशन में ही। एक ही लाइन के अबाउट जो एस एच एम हो रहा होगा उसको हम स्टडी करेंगे। सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। बीट्स जो है वो इम्पोर्टेंट केस होता है, ये बीट्स होता है ऑसिलेशन कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। हमें केवल 4.4 है जो हमारा मेन है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आप देख लेना। ऑब्जेक्टिव्स, you should be able to give an example of electromagnetic system exhibiting SHM, ये अभी हमने पढ़ा LC सर्किट का। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये अभी हम पढ़ेंगे। यूज ऑफ सिंपल पोजिशन सुपरपोजिशन टू ऑब्टेन रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी, और हम दो से ज्यादा के पे लगाएंगे, दो या दो से ज्यादा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, the superposition principle states that the resultant of two or more harmonic displacement is simply the vector sum of individual displacement. The resultant of two or more harmonic displacement is simply the vector sum of individual displacement. Like x is equals to x1 plus x2. If x is displacement, then x is the sum of the individual displacements x1 and x2. Suppose that a particle is acted upon by two separate forces, each of which can separately produce a simple harmonic motion. The resultant motion of particle is combination of two simple harmonic motion. तो इसको हम कैसे शो करेंगे, एक पार्टिकल है आपका, इस पे आपके दो फोर्स लग रहा है F1 और F2। आपको बताना है कि जो इसमें कोई भी एक पार्टिकल है वो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन से बना हुआ है। Let R1 denote the position of particle of mass m at time t if force F1 acts alone acts on it, and R2 denotes the position at time t if F2 acts along it. Newton's law, second law gives F1 equal to F is equals to ma, F1 is equals to ma1 m d2 R1 by dt2। ये F1 हो गया। सिमिलरली हमने F2 लिखा, सर इसका F2 इज क्वेश्चन एम समझ डी। में नहीं आया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन मतलब आपका एक पार्ट, क्वेश्चन एक पार्ट, आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक आपका पार्टिकल है एम मास का, इस पे दो फोर्स लग रही है एफ और एफ, F1 F2। अब आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल प्रूव करके दिखाना है, मतलब आपको क्या शो करना है, F टू F1 प्लस F2 शो करना है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे नहीं कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि आप ऐसा शो करो कि ये जो सिस्टम है इस पे दो कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर एक्ट कर रहे हैं, ये दो। तो आपका कैसे होगा, ये आपका पार्टिकल हो गया एम मास का, इधर से एक फोर्स लग रही है एफ और इधर से एक फोर्स लग रही है एफ।
आपको ये ऐसा दिखाना है कि इस पे दो फोर्सेस मतलब दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह एक्ट कर रहा है ये एक ये सिस्टम जो है टोटल ये। तो एडिंग देम, हमने दोनों को ऐड किया, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, R1 प्लस R2 D2 R1 plus R2 upon DT2. But F1 plus F2 is the resultant force acting on particle, and so the resultant position R of particle when force acts on it, and is given by R equal to R1 plus R2. The actual displacement or position is vector sum of R1 and R2. तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा जो ये है वो दो डिफरेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सुपरपोजिशन की डेफिनेशन क्या थी? द रिजल्टेंट ऑफ two or more harmonic oscillator harmonic displacement is simply the vector sum of individual displacement. Okay. सर ये एसएचएम का मतलब एसएचएम का कुछ वर्ड बोला है ना, वो समझ नहीं आ रहा है हार्मोनिक मतलब। डिस्प्लेसमेंट सुपरपोजिशन होता है समझ में आया है। सुपरपोजिशन क्या होता है? सुपरपोजिशन तो लीनियर सम होता है ना, किसी भी अगर फोर्स लग रही है तो फोर्स का सम F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द लीनियर सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल दोस फोर्सेस। बस यही बोला है वो समझ में आया, यहाँ क्वेश्चन में हार्मोनिक। जो लास्ट लाइन हाँ। लिखा हुआ है ना, द रिजल्टेंट मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये समझ नहीं आ रहा मतलब। आपने क्वेश्चन एक मिनट रुको। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है, इसके ऊपर दो सेपरेट फोर्स एक्ट कर रही है, विच कैन सेपरेटली प्रोड्यूस सिंपल हार्मोनिक मोशन। दो फोर्स एक्ट कर रही है और वो दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन बना सकती है। तो आपको बताना है जो रिजल्टेंट मोशन होगा पार्टिकल का वो भी वो किससे बना होगा? दो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। सीधा सा तो है, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? आपका जो रिजल्टेंट मोशन होगा पार्टिकल का, आपका ये पार्टिकल है, ठीक है? ये पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स ये एक्ट कर रही है, ये एक फोर्स एक्ट कर रही है F1 और F2। F1 जो है वो अपना वो बना रही है, क्या कहते हैं, क्या एसएचएम होता कर रहा है, है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और F2 भी अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन बना रही है। अगर टोटल एक पे एक्ट करेगा तो भी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा ना। अरे सर। तो बस उसने ऐसे ही प्रूव कर दिया कि आर आर इक्वल टू R1 प्लस R2 आ रहा है। F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, m d2 r by dt2 is equals to m d2 r1 dt2 प्लस d2 r2 by dt2, और यहाँ पे m कॉमन आ जाएगा। हम R1 और R2 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो dt2 R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, और इधर m d2 r by dt2। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड r इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ओके। ठीक है सर। हम्म। नाउ superposition of two collinear harmonic oscillation having equal frequency। equal frequency means omega 1 is equals to omega 2। हमने लेट कर लिया x1 is equals to a sin omega t and x2 is equals to a2 sin omega t plus delta, differing by a phase difference phi, sorry, delta। There are two methods which can be used to obtain an expression due to superposition of above two harmonic oscillations। Let us discuss them now। पहला है analytical method। Analytical method is just adding, और ये मैथमेटिक्स बेस्ड है। x इक्वल टू x1 प्लस x2, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। यहाँ पे साइन a प्लस b का हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, तो इससे ये इक्वेशन आ गई। फिर साइन ओमेगा वाली टर्म्स अलग, कॉस ओमेगा टी वाली टर्म्स अलग, c साइन ओमेगा टी प्लस d कॉस ओमेगा टी।
फिर हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर के जैसा बना लिया, मल्टीप्लाई नॉर्मलाइज कर दिया सी अंडर रूट सी स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर से। यहाँ से हमने इसको सी को ये बना दिया, डी को ये फ्लैट कर लिया। We know that the magnitude of this is less than 1. Thus, for angle epsilon between 0 to 2 pi, we can have sin epsilon and cos epsilon to be this. Therefore, we get x is equals to under root c square plus d square cos epsilon sin omega t plus sin epsilon cos omega t। ये समझ में आया कैसा है? सर हेलो। मैथमेटिक्स है, अपने करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, मैथमेटिक्स से ऊपर से सीधा सीधा है, बस लेट करते जाना है आपको। ये वाली लाइन याद रखनी है कि ये सब चीज लेस देन 1 है। साइन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन फॉर स्मॉल एंगल। ओके, यहाँ से हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। सर ये लेस देन 1 कैसे आ रहा है? c की वैल्यू कितनी है? a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा और d कितना है? a2 साइन डेल्टा। ओके, आप इसको ऐड स्क्वायर करके ऐड करो। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा प्लस ये सी स्क्वायर हो गया और डी स्क्वायर कितना है? a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। ये वाली टर्म 1 दे देगा। ओके, तो ये क्या बना? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। फिर ये एक टर्म है। जब किसी बड़ी टर्म को इससे ऊपर वाली टर्म सी है, सी की a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा, मतलब सर ये है। ऊपर छोटा है ना नीचे से, इसलिए लेस हाँ, देन 1 हो। इसलिए ठीक है। लेस देन 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एंगल सर निकाल इसमें सकते बस हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू याद रखना है ना, और एंगल। बस एक इसका एक एंगल का। Equation 4.5 shows that a resultant of two collinear SHM having same frequency itself is itself a simple harmonic motion. The amplitude and phase of the resultant is given by this. ये एम्पलीट्यूड हो गया और ये दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया। वेक्टर मेथड है। वेक्टर मेथड में हमने माना a1 इस डायरेक्शन में, उसके साथ a2 इस डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि वो एक फेज पे जा रहा है इसके साथ डेल्टा, तो हमने इसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा दिया। ओके, ए इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर, वहां से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं a इज इक्वल्स टू a1 a2 दिस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा tan epsilon। The resultant A makes an angle epsilon with x-axis and can be expressed as tan epsilon is equals to height by base। हाइट कितना हो गया? a2 का है, ये एंगल है तो ये क्या हो गया? a2 साइन एप्सिलॉन और ये क्या हो गया? a2 कॉस एप्सिलॉन। तो बेस कितना हो गया? a, यहाँ पे इसको अगर मार्क कर देते हैं हम, ये o h g f, तो हमारी एच एफ कितना हो गया? मतलब बेस कितना हो गया? एच एफ इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा, ये डेल्टा है कॉस डेल्टा, a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा और a2 साइन डेल्टा, जो दोनों की सेम है। ऐसे ही हम तीन के लिए डिफाइन कर सकते हैं। The advantage with the vector method is that it can be easily extended to more than three vectors. For example, if we have three vectors x1, x2, x3, पहले हमने ऐसे निकाल सकते हैं द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस एप्सिलॉन। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री वी कैन सी दैट a इज इक्वल्स टू, ये मैथमेटिक्स लगाइए, वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। पहले आप इन दोनों के लिए लगाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाओ।
यहाँ से ए निकालो आप, ए आर, और फिर ए आर ए थ्री के बीच में आप वेक्टर लॉ लगाओ, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हो। ओके, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ऐसे थोड़ा हेक्टिक पड़ जाएगा अगर आप तीनों के साथ एक साथ लगाओगे, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन है ये। अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन x1 x2, डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0, मैक्सिमम speed of particle and the maximum acceleration of particle। पहले हमें इसका एट टी इक्वल टू 0 करना है, x1 x2 निकालना है। x1 x2 आ गया, therefore the resultant displacement at t equals to 0 is x इक्वल टू x1 प्लस x2। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला भी हमने देखा, a इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा की पावर हाफ, स्क्वायर रूट में बस वहां से निकाल लिया। एंगल कितना दिया है, पाई/3। डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, पाई/3। तो यहाँ पे रख के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना होता है, ए मैक्स इज ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा और ए हमने ऊपर से निकाल लिया है, वहां से हम निकाल सकते हैं आंसर। अब है ऑसिलेशंस हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और बीट्स। Suppose that we have two collinear harmonic oscillations of different frequencies and amplitude. For simplicity, we assume that two oscillations have same phase constant, which we can take as zero. The two SHM with displacement x1 s2 and frequency omega 1 omega 2 and omega 2 is less than omega 1 respectively can written as x is x1 this, x2 this, x equal to x1 plus x2, a1 ये this आ गया। अब यहाँ से हमने to simplify the above equation we define two सर एक terms, बार average समझा दो। frequency। आपको क्या करना है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज लेनी है। डिफरेंट फ्रिक्वेंसी लेनी है तो आप फेज डिफरेंस दोनों में सेम रख सकते हो, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी डिफरेंट है। ठीक है, आपने फेज डिफरेंस कांस्टेंट रख दिया और जीरो रेक्ट कर दिया, तो आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन, वो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये क्या बन गया, डेल्टा हमने जीरो लेट कर लिया, तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, या इन्होंने साइन के में लिखा है तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। फिर उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया, एक्स वन प्लस एक्स टू साइन ए वन और साइन ए टू। अब हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डिफाइन करते हैं, एवरेज फ्रिक्वेंसी और मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी। Average frequency is defined by omega 1 plus omega 2 by 2 and modulation frequency is defined by omega 2 minus omega 1 by 2। ओमेगा 2 हमने बड़ी कौन सी हम मानी लोग थी, ओमेगा 1 बड़ा मान रहे हैं ना। पता नहीं यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा 1, यहाँ पे इससे बड़ा मानेंगे। ठीक है, ओमेगा 2 को बड़ा मान लिया ओमेगा 1 से, तो ओमेगा 1 ये आ गया, ओमेगा 2 ये आ गया। इसको हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। Now let us define amplitude at and phase constant epsilon t, which are both function of time such that a1 plus a2 cos omega m t को हमने a cos epsilon मान लिया and minus a1 by minus a1 a2 a1 minus a2 sin omega m t is equal to a sin epsilon मान लिया। Using the above situation in equation ये अपने 4.8 आप we लेट get कर this। रहे हैं। हाँ, अपने आप लेट करना है, ये तो सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं हम, जिससे कि इक्वेशन को सिंपलर बना सके। अगर आपके पास कोई और सा सब्सटीट्यूशन है इससे अच्छा, तो आप वो कर लीजिए। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा ए टी बाई एप्सिलॉन। बी फाइंड दैट द एम्पलीट्यूड ए एंड फेज कांस्टेंट एप्सिलॉन that we defined earlier is actually the resultant amplitude and the resultant phase constant। The above equation can be misleading। Although the above equation resembles the equation of SHM, it will be wrong to conclude that the resultant motion is SHM। It is so because amplitude A and force constant epsilon are not constant as such. Rather, they are dependent on time। This oscillation can at best be described as periodic with angular frequency omega alpha, the average of two component frequency। समझ में आया?
नहीं सर। इसमें कह रहा है कि ये जो आपके पास जो ये इक्वेशन आई है 4.11 x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एल्फा ओमेगा ए टी प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमारा क्या है, एप्सिलॉन और ए जो है ये टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं तो इसे ऑसिलेटरी नहीं माना जा सकता, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर टाइम बढ़ता जाएगा तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। ओके, तो इसलिए इसे हम पीरियोडिक ही कहेंगे। यहाँ पे लिखा है ना, it is so because the amplitude a and phase constant epsilon are not constant as such, rather they are dependent on time. This oscillation can be described as periodic with angular frequency omega a. तो इसे हम केवल पीरियोडिक मोशन कहेंगे जिसका पीरियड कितना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा ए, द एवरेज ऑफ टू कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने का क्या तरीका है, can be calculated by squaring equation 4.9 and 4.10। 4.9 क्या है, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ए स्क्वायर आ गया इधर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, ए 1 ए 2। इसको सॉल्व करके हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में जो हमने लास्ट इक्वेशन निकाला था, जो हमारी सेम फ्रीक्वेंसी थी, सेम फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे टाइम की टर्म नहीं आई थी, यहाँ पे आया था फेज कांस्टेंट। तो उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन था ए, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा है। एंड द रिजल्टेंट फेज कांस्टेंट कैन बी डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन। ये भी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको भी नहीं हम कह सकते। बीट्स, when the component frequency are nearly equal, that is omega 1 equal similar to omega 2, the modulated frequency can be very small in comparison to average frequency. This, in such scenario, the slowly varying modulated amplitude, the resultant amplitude A, and the modulated phase constant vary only slightly with time and may be treated almost constant during the time scale of interest, which is our case. The time period is given by t is equals to 2 pi by omega a. In such condition, equation 4.11 will represent approximate harmonic oscillator. अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जब ओमेगा एम लेस देन ओमेगा ए हो जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेशन हैविंग सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए। तो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और frequency of oscillation is equals to omega a. The resulting oscillation in the case where the two frequencies are SHM are nearly equal exhibits what are called beats। और इसी को हम क्या कंडीशन कहते हैं, बीट्स की कंडीशन कहते हैं। when is amplitude modulated amplitude maximum from equation 4.12। 4.12 इक्वेशन क्या है, ये हमें इसकी मैक्सिमम की कंडीशन निकालनी है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, a1 plus a2 when cos ओमेगा m2 mt is 1। ये हमारी आ गई बीट की कंडीशन, या फिर ये, या फिर ये। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू consecutive maxima is 1 upon ν2 minus ν1। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैक्सिमा इज ν2 minus ν1। अब मिनिमम की कंडीशन, वो मैक्सिमम की कंडीशन थी, ये मिनिमम की कंडीशन है, a1 माइनस a2, ये -1 रख देंगे, तो t इज इक्वल्स टू 1/2 this condition. Hence, the time interval between two consecutive minima is 1 upon ν2 minus ν1 and the frequency is ν2 minus ν1। The periodic variation, ये आपको याद रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है। The time period Tv between two successive beats is called beat period and is given by 1 upon ν2 minus ν1 and the beat frequency is given by ν2 minus ν1। ये डायग्राम है कि बीट्स हमारी कैसे होती है। Hence the beat सर frequency, हाँ सर ये जो बीट्स हैं ये साउंड में बनती है ना? किसी के भी हो सकता है, सर बीट्स तो और कहीं किस पे भी किस हो सकता है। बीट्स तो एक जनरल वर्ड है, बीट्स को हमने डिफाइन किया ना यहाँ पे, जब मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी लेस देन हो जाएगी एवरेज फ्रीक्वेंसी के। कहाँ गया, कहाँ डिफाइन किया, यहाँ कहीं पे तो डिफाइन किया था ये, सर जब पर ये मॉड्यूलेटेड बस फ्रीक्वेंसी। साउंड में ही होगा ना, क्योंकि
लाइट क्यों में तो लाइट होगा में नहीं हो नहीं। सकता? क्यों हम्म, क्यों नहीं होगा? आप दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की लाइट ले लीजिए जिनका एम्पलीट्यूड पर डिफरेंट हो। ऑलमोस्ट इक्वल ना, ऑलमोस्ट इक्वल फ्रिक्वेंसी। हाँ सॉरी, ऑलमोस्ट इक्वल फ्रिक्वेंसी की दो लाइट ले लीजिए आप जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। वहां से आपका मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी एवरेज फ्रिक्वेंसी के से बहुत कम आएगा। कहीं पे भी कंडीशन आ सकती है, साउंड में बस हम रीड करते हैं क्योंकि वो जो हम म्यूजिक वगैरह सुनते हैं उसमें बीट्स वगैरह आता है तो हमें लगता है कि ऐसा साउंड के साथ होता है। ये कहीं भी हो तो सकता है। लेकिन तो ठीक है। साउंड में तो बड़ा बड़ा घटा भी सकते हैं बीट्स वगैरह, लेकिन लाइट में क्या ऐसा कर सकते हैं? लाइट में इतना प्रोमिनेंट नहीं होता होगा ना, जिससे कि हम वो कर सकें, उसको डिफरेंशिएट कर सकें। लेकिन सर साउंड में बढ़ा सकते हैं ना ये बीट्स वगैरह जो भी होता है। हाँ, साउंड में फ्रिक्वेंसी आप मॉड्यूलेशन वगैरह उसमें साउंड में इजी होता है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है ना, उसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन लाइट की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते ना। जैसे माइक्रोवेव रीजन की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? माइक्रोवेव हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया। ओके, ये इसकी कंडीशंस आ गई, ये याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आप क्वेश्चन वगैरह ट्राई कीजिए। A tuning fork A produce 4 beats with tuning fork B of frequency 256 Hz. When A is vexed, the beats are found to occur at shorter interval. What is the original frequency? As the tuning fork A produces 4 beats with B of frequency 256 Hz. From equation of 4.15, the frequency of A should be 4.15 कौन सी इक्वेशन है? ये बीट फ्रीक्वेंसी न्यू बी इज न्यू टू माइनस न्यू वन। न्यू इज इक्वल्स टू 256, न्यू बी कितना है? न्यू वन माइनस न्यू टू, या न्यू ए माइनस न्यू बी मॉड। तो न्यू बीट बीट फ्रीक्वेंसी कितनी देगी हमें? 4 इज इक्वल्स टू 256 माइनस न्यू बी, सॉरी न्यू ए कितना आ गया हमारा? 256 प्लस माइनस 4 हर्ट्स। तो टी बी इज इक्वल्स टू 1/न्यू टू माइनस न्यू वन। ऐसे करके डिक्रीज हो रहा है। या तो 256 हो जाएगा, 256। क्वेश्चन में क्या कहा गया इसके बाद? when a when a is vexed, the beat are found to occur at shorter interval। जब हम इसे बैक्स कर दे रहे हैं तो जो टाइम इंटरवल है वो छोटा होता जा रहा है। लिखा है ना, when tuning fork A is vexed, we are given that the beat period this is decreasing, so the frequency is increasing। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ए इज गिवन बाय 256 plus 4 260 hertz। When fork A is vexed, the frequency V1 will decrease and hence beat frequency should also decrease, but it is not what we have found above, so frequency cannot be 260 hertz। तो हमने दूसरा लेट किया 256 minus 4 is equals to 252 hertz, then its frequency nu1 decrease due to vexing, the beat frequency increases, hence V1 is equals to 252 hertz। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 4। ए और बी, ए एंड बी की बीट फ्रीक्वेंसी है 4 और फ्रीक्वेंसी ऑफ बी गिवन है 256 हर्ट्ज। अब हमने ए को जो है वैक्स कर दिया। वैक्स करने के बाद टाइम इंटरवल डिक्रीज हो गया। अब टाइम इंटरवल डिक्रीज हुआ है तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो हमारे पास जो ए और बी की फ्रीक्वेंसी है उसमें कितने का डिफरेंस चाहिए? 4 का। अगर हम 256 प्लस 4 कर रहे हैं तो 260 हो रहा है बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी अगर 256 वो सॉरी बीट ऑफ ए 256 हो रहा है तो वैक्स करने के बाद तो डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन वैक्स होने के बाद इंक्रीज कर गई फ्रीक्वेंसी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने सेकंड केस कंसीडर किया 256 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 252। 252 अगर हमारी फ्रीक्वेंसी है ए की तो इसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है। तो यही आंसर है हमारा। जो हमारी ए की फ्रीक्वेंसी है वो 252 हर्ट्स होनी चाहिए ताकि हमारा बीट बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 आए।
ये आप पढ़ोगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप इसे पढ़ के जब समराइज करोगे अपने दिमाग में तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके। यस सर। ओके, बाकी अब आपके दो टॉपिक और बचे हैं, फिर एक वो लिसाजस फिगर वाला, और उसके बाद आपका बचा है वाला क्या कहते हैं, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो कल करेंगे। ओके। सुबह में सर। हाँ, फिर खत्म हो गया आपका वेव्स एंड ऑसिलेशन, आपका खत्म हो जाएगा। ओके। सर फ्लूइड नहीं पढ़ाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स? फ्लूइड मैकेनिक्स इसमें थोड़ी है, अभी तो वेव्स एंड फ्लूइड, ऑसिलेशन करा रहा हूँ ना मैं। हाँ मैं तो कह रहा हूँ आगे सर, क्योंकि फ्यू सेट में तो आता है हाँ, उसके क्वेश्चन का। नहीं नहीं, वो सब करना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है ना। इससे पहले तो मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाई थी, लैग्रेंजियन हाँ हैमिल्टोनियन, वो सिलेबस से ही हटा दिया, तो उस चक्कर में लॉस हो गया ना। अगर पहले से सिलेबस पता रहता कि क्या आने वाला है तो उस टाइम पे वो वाला हो जाता। सारी चीजें कराई जाएंगी, सब जो भी है सिलेबस में लिखा हुआ, ठीक है। ये वाली यूनिट सोच रहा था मैं पहले पूरी करा देता हूँ, छोटा है तो। तो सर ओके। इसके भी क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा क्या वेव एंड ऑसिलेशन के फ्यू सेट में? एग्जाम